Good afternoon, friends. Today we'll take the topic GST on maintenance charges of the cooperative group housing society or the society, as the case may be. Friends, this topic is less debated because the burden of it falls on us. We normally don't discuss the things which affects adversely to us. डॉक्टर्स के पास भी हम कई बार अवॉइड करते हैं कि कहीं हमें वो कोई बीमारी ना बता दे. तो दिस दैट इज वाई इट वाज लेस डिस्कस्ड. This topic has become hot after the amendment in the Finance Bill 2021, where they have made certain changes. So I thought we should discuss and debate this topic, whatever the incidence may be and whatever the impact may be. Friends, generally there are three scenarios. One scenario is there are cooperative society. Cooperative societies construction complete करते हैं. Complete करने के बाद they involve themselves into the maintenance of the society. तो maintenance charges वगैरह सब खुद ही collect करते हैं और maintenance भी वो करते हैं. There can be another type of the society like in case of builders completion करता है construction का. उसके बाद after some time they transferred the entire maintenance part to RWA, जो कि उन्हीं के रेजिडेंट्स की सोसाइटी है. एंड तीसरा सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि बिल्डर हिमसेल्फ इज प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस सर्विसेज. इन दिस केस बिल्डर हिमसेल्फ प्रोवाइड्स टैक्सेबिलिटी. फर्स्ट और सेकंड केस विज दिस बिल्डर हिमसेल्फ इज प्रोवाइडिंग द मेंटेनेंस सर्विस समथिंग डिफरेंट. इन ऑल द थ्री केसेस maintenance charges are collected toward the security, cleaning, housekeeping, electricity for common use, water, routine maintenance. These are generally procured from the third party. In addition, the society may also employ certain staff and workers such as administrative officer, accountant, plumber, electrician, lift operator, etc. This might be on the employment role of the society. And there can be a third degree of the payment, third kind of the payment, where he has to engage certain professional for the purpose of, for example, audit fees, legal expenses to the advocates. All these are the procurements from the professionals. So there are generally three types of the expenses which society used to incur, और इन सब की रिकवरी जो होती है from the members in the form of maintenance charges or society charges, by whatever name we call. So friends, the question before us are twofold. First question is whether society itself is providing any service to the member. This is the question of the larger interest. This is the larger question. And the second one, if yes, then whether such service is subject to GST. We'll discuss both these questions. So first of all, the first question is whether the society itself is providing any service to its member. So friends, earlier in this service tax regime, there was mutuality concept. There was Supreme Court judgment in Calcutta Club in August 2019, where the court confirmed the mutuality aspects. So far as services to third person other than the members, such as renting of the commercial space, hoarding, etc., where this mutuality concept was not there, तो उसकी टैक्सेबिलिटी में तो सर्विस टैक्स के रजीम में भी कोई डिस्प्यूट नहीं था और अब भी नहीं है कि ये सब सर्विसेज तो टैक्सेबल होंगी ही होंगी. लेकिन जब हम जीएसटी की तरफ आए तो जीएसटी में गवर्नमेंट हैज़ नेगेटेड द म्यूचुअलिटी कंसेप्ट. जो पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में, इट इंक्लूड्स दिस सोसाइटी एज वेल एज कोऑपरेटिव सोसाइटी. जो बिजनेस की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17, इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और अदर फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर, वेदर फॉर सब्सक्रिप्शन और फॉर एनी अदर कंसिडरेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस. अगर हम अपनी एंट्री को देखते हैं तो देर इज वन एग्जम्पशन एंट्री अंडर द एग्जम्पशन लिस्ट. दिस इज एंट्री नंबर 77 विच एग्जम्प्ट्स द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी registered under any law to its member by way of reimbursement of charges or share of contribution up to rupees 7,500 per month per member for sourcing of the goods or services from a third person for the common use of members in a society or residential complex. मीनिंग देयर बाई कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड सोसाइटी बॉडी है या
नॉन प्रॉफिट एंटिटी बॉडी है, अगर जो कि हाउसिंग सोसाइटी है, एक रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है, तो अगर 7,500 रुपये पर मंथ पर मेंबर अगर लिया जाता है फॉर द पर्पस एज रिम्बर्समेंट और कंट्रीब्यूशन, देन दैट वुड बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स. अगर 7,500 से ऊपर लिया जाता है पर मंथ पर मेंबर, देन दैट वुड बी टैक्सेबल. फ्रेंड्स प्लीज नोट करिए, दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू दी सोसाइटी, इट इज नॉट अवेलेबल टू द बिल्डर. अगर बिल्डर अपने आप से मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वो दे विल नॉट फॉल अंडर दिस एग्जम्पशन. ये एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर द अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और एंटिटी. अभी पीछे एक अपीलेट एडवांस रूलिंग आई बाय महाराष्ट्र अथॉरिटीज, जहाँ पे उन्होंने इन द केस ऑफ अप्सरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सोसाइटी चार्जेस, द मेंटेनेंस चार्जेस आर टैक्सेबल. अभी जो अमेंडमेंट आया 2021 में, ये जो अमेंडमेंट इफेक्टिव गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, दिस इज द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, दिस थ्रू द बिल, दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट दे हैव प्रपोज्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 17. और इसमें उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कहा सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स फॉर ए कंसिडरेशन. सो उन्होंने इस तरह की सभी एक्टिविटीज को कवर करा है. एक्सप्लेनेशन भी एक ऐड करी है, द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन्स. तो ये अमेंडमेंट वो भी रिसेंटली उन्होंने प्रपोज करी है. टू कंक्लूड, गवर्नमेंट स्टैंड इज वेरी वेरी क्लियर दैट मेंटेनेंस चार्जेस if exceeds rupees 7,500 per month per member, then that would be taxable. And in case of the builders, अगर builders कलेक्ट करता है तो वो उसमें सभी कुछ टैक्सेबल होता है. तो फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सोसाइटी के केस में व्हाट आर द टैक्सेबल एंड व्हाट आर द एग्जम्प्टेड सर्विसेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे हमें देख लेना चाहिए कि इफ द रिसीट ऑफ द सोसाइटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल रिसीट मीन्स एग्जम्प्ट प्लस टैक्सेबल. अगर ये दोनों की टोटल रिसीट इज लेस देन 20 लाख रुपीज, इन दैट केस सोसाइटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स on even on the maintenance charges or on the taxable receipts. I am repeating friends, 20 lakhs includes taxable as well as exempted supplies. अगर 20 लाख से कम है तो उस केस में सोसाइटी को किसी तरह की, अगर इवन टैक्सेबल रिसीट्स भी होती है तो उस पर भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. फ्रेंड्स, 20 लाख कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है. अगर हम एक छोटी सोसाइटी की बात करें जिसमें 100 मेंबर्स है एंड विच इज कलेक्टिंग 1,800 पर मंथ पर मेंबर for 12 months, then total contribution comes to 21.60 lakhs. तो इस 2160 lakhs पे 20 लाख क्रॉस हो जाते हैं. अगर सिर्फ इतनी ही कंट्रीब्यूशन है देन देर इज नो नीड फॉर एनी टैक्स. लेकिन अगर इसके बाद अगर इसमें कुछ टैक्सेबल रिसीट्स आ जाती हैं देन टैक्सेबिलिटी वुड अराइज. टैक्सेबल सर्विसेज क्या हो सकती हैं? टैक्सेबल सर्विसेज सोसाइटी के केस में रेंटिंग ऑफ द स्पेस फॉर कमर्शियल एक्टिविटी, कोई सोसाइटी में टेली कम्युनिकेशन है या टेल टावर लगा लिया, उसकी लाइसेंस फीस आती है. होर्डिंग कियोस्क हो सकते हैं, कोई शॉप हो सकती है सोसाइटी के पास जिसकी रेंटिंग आ रही है. इसी तरह से जो मेंटेनेंस चार्जेस मोर देन 7,500 पर मंथ पर मेंबर, दैट वुड आल्सो बी टैक्सेबल. इसी तरह से अगर मेंबर से कार पार्किंग चार्जेस लिए जाते हैं तो दीज वुड आल्सो बी टैक्सेबल. सो दीज आर द टैक्सेबल रिसीट्स. अगर हम एग्जम्प्टेड की बात करें तो एग्जम्प्टेड में फ्रेंड्स, अगर 7,500 रुपये से कम के मेंटेनेंस चार्जेस हैं पर मंथ पर मेंबर, देन दिस वुड बी एग्जम्प्ट. बैंक इंटरेस्ट, चाहे वो सेविंग बैंक से है या एफडी से है, वो भी एग्जम्प्ट है. कई बार इंटरेस्ट भी कलेक्ट किया जाता है, इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस. इफ इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट इज कलेक्टेड on the maintenance charges from members whose maintenance charges is less than 7,500, तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा. लेकिन अगर किसी ऐसे मेंबर से लिया जाता है जिसके मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है, इन दैट केस इंटरेस्ट वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स. सो फ्रेंड्स, वी हैव सीन व्हाट आर द टैक्सेबल रिसीट्स एंड व्हाट आर द एग्जम्प्टेड रिसीट्स. तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन की कब कब और कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है और क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है या नहीं है. तो फ्रेंड्स, अगर सोसाइटी कोई एडवोकेट को पेमेंट करती है फॉर रिसीविंग एनी लीगल सर्विसेज, इन दैट केस देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट. अगर उसकी टोटल रिसीट्स इवन 1 रुपया भी है, देन आल्सो
For the purpose of payment of legal fees to the advocate, he has to take registration and discharge his liability at the rate of 18% to the government on reverse charge basis. और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे के सारे लॉ उसी तरह से लग जाते हैं, उसे सारी की सारी टैक्सेबल रिसीट्स पे पेमेंट करना पड़ेगा। एडवोकेट फीस पे तो उसने रिवर्स चार्ज में भेजा है, पे करा ही है। इसके अलावा एक और सर्विसेज आती है जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है, वो सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर सोसाइटी कोई सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी पर्संस फ्रॉम नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, इन दैट केस रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आ जाती है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट से करते हैं तो उस केस में रिवर्स चार्ज की कोई लायबिलिटी नहीं आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर एडवोकेट की इसमें फीस नहीं है तो जब तक 20 लाख क्रॉस नहीं हो जाता तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी तरह की टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। अगर 20 लाख क्रॉस हो जाता है तो उस केस में अगर टोटल एग्जम्प्टेड रिसीव्स ही आ रही हैं तो भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कोई टैक्स पेमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 20 लाख क्रॉस कर जाता है और उसके बाद जो भी टैक्सेबल रिसीट्स हैं उस पर सोसाइटी को टैक्स पे करना पड़ता है। वो जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि क्या क्या टैक्सेबल रिसीट्स हो सकती हैं, किसी भी तरह की होर्डिंग होगी, इंक्वायस्ट होगा, कमर्शियल रेंटिंग होगी, शॉप्स होगा, तो उन सब पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। जो एग्जम्प्टेड होगी उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये जो एग्जम्पशन आई एम रिपीटिंग फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन, दिस एग्जम्पशन ऑफ 7,500 पर मंथ is not available to the builders, it is available only to the society. Let us take a small illustration. Supposing एक RWA है, उसकी receipts है, receipts में maintenance charges है 100 flats at the rate of 1,500 per flat for 12 months, total comes to 18 lakhs. रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? आंसर इज नो। उसका एक बैंक इंटरेस्ट भी आता है, बैंक इंटरेस्ट इज से 50,000 पर मंथ, टोटल कितना हुआ 18.5 लैक्स। रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? आंसर इज अगेन नो। सपोजिंग एक वो रेंटिंग करते हैं स्पेस की फॉर कमर्शियल पर्पसेस, उससे 1 लाख रुपए साल का रेंट आता है, तो टोटल रिसीट्स कितनी हुई 19.5 लैक्स। अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? नो। अब इसके बाद वो क्या करते हैं, एक अपनी सोसाइटी में प्रीमिसेस थोड़ा सा स्पेस किराए पर देते हैं फॉर एयरटेल टेलीकॉम टावर, और वहां से 5 लाख रुपीस रेंट आ जाता है। नॉट टोटल कम्स टू 19.5 प्लस 5 24.5 लैक्स। तो उस केस में क्योंकि ये 20 लाख से क्रॉस हो गया, इसलिए रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी भी है, टैक्स भी पे करना पड़ेगा टैक्सेबल सर्विसेज पे। टैक्सेबल सर्विसेज इस केस में कितनी हुई, 1 लाख तो पहली रेंटिंग थी और 5 लाख ये वाली हुई, तो टोटल 6 लाख रुपए पर टैक्स पे करना पड़ेगा 18% के हिसाब से। एंड रिमेनिंग रिसीट्स विच आर एग्जम्प्ट, उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर सोसाइटी टैक्स पे करेगी तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाता है, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब डिस्कस करने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास जो जनरली सोसाइटीज़ होती हैं वो ऐसा होता है कि 50-60 लाख रुपए के तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस चार्ज भी 7,500 से कम के होते हैं, तो जनरल रिसीट्स आर एग्जम्प्ट। जो हाई एंड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर तो 7,500 से ऊपर होते होंगे और वहाँ पे तो उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर हाई एंड सोसाइटीज़ नहीं है तो उस केस में मेंटेनेंस चार्जेस है जनरली 7,500 से कम होते हैं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पर ऐसे में अगर कोई टैक्सेबल रिसीट्स ले लें तो समस्या खड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मेरी रिसीट है सोसाइटी की 60 लाख रुपए और 2 लाख रुपए कोई और एक रेंटिंग कर लिया, तो अब पोजीशन ये हुआ कि अब 2 लाख रुपए पर टैक्स पे करने के लिए मुझे सारे के सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मंथली रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी और फर्दर कंप्लाइंसेस, एनुअल रिटर्न, एवरीथिंग वट एवर कंप्लाइंसेस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन जीएसटी एक्ट, ऑल वुड बी एप्लीकेबल टू मी। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? फ्रेंड्स, इसको डेलिब्रेट करते करते इन बिटवीन मुझे कुछ एक दिमाग में आ रहा है। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन माई थॉट प्रोसेस, जो कि मैंने अभी सोचा है, इसको आई विल एनालाइज लेटर इन डिटेल। तो क्या हम किस तरह से कर सकते हैं, जो मैं अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। कि सपोजिंग वी हैव गॉट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज आवर मेन सोसाइटी, जिसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है, उसके मेंबर्स हैं और उसकी टोटल रिसीट सपोजिंग 60 लैक्स एग्जम्प्ट है और 5 लाख रुपए टैक्सेबल है। अगर हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो एक सेपरेट RWA फॉर्म कर लें, दिस RWA इज अगेन दिस सोसाइटी ऑफ द मेंबर्स,
इस RWA का सेपरेट पैन होगा, एक सेपरेट RWA क्रिएट कर लें फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। ये RWA बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे बिल्डर्स फॉर्म करते हैं, बिल्डर्स भी इसी तरह से एक मेंटेनेंस सोसाइटी फॉर्म कर देते हैं। इसी तरह से हमारी मेन हाउसिंग सोसाइटी है वो एक RWA फॉर्म कर लेती है, विच इज़ ए रजिस्टर्ड सोसाइटी विच विल हैव इट्स ओन पैन। और ये जो सेपरेट सोसाइटी है दैट विल collect all the maintenance charges and incur all the expenses relating to the maintenance of the society। तो होगा क्या, इस मेंटेनेंस का पार्ट सारा का सारा RWA के पास आ गया। और अगर सारी की सारी रिसीट्स 7,500 पर मंथ पर मेंबर से कम है तो उसको रजिस्ट्रेशन GST में लेने की जरूरत नहीं, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, इसके पास कोई फर्दर टैक्सेबल रिसीट्स भी नहीं है। एट द मोस्ट इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट इज आल्सो एग्जम्प्ट। अगर कुछ मेंबर 7,500 से ऊपर के हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन लेकर के फिर तो वो अलग बात हुई। लेकिन अगर सारे के सारे 7,500 से नीचे के हैं पर मंथ पर मेंबर तो उस केस में हमें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम अपनी मेन सोसाइटी पर आ जाते हैं। मेन सोसाइटी जो है उसके पास क्या इनकम बचेगी, उसके पास क्योंकि प्रेमिसेस सब कुछ उससे पर्टेन करते हैं तो उसके पास जो मेन होगी जितनी भी रेंटिंग हो वहाँ से हो जाए, कियोस्क वहाँ से चले जाएँ और जो कमर्शियल एक्टिविटी हो वहाँ से आ जाए, तो उसके पास जो टोटल रिसीट जो 5 लाख वाली जो रिसीट्स होगी वो उसके पास बचेगी। क्योंकि ये 20 लाख से कम है तो मेन सोसाइटी भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। हाँ, अगर 20 लाख से ऊपर होगी तो सर्टेनली इट विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे GST, लेकिन हमारे प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन में जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, दिस इज माय थॉट प्रोसेस। आई विल फर्दर एनालाइज, आई विल हैव ए डिटेल स्टडी ऑन दिस। और अगर इफ ऑल द एक्ट्स इंक्लूडिंग द अलाइड एक्ट्स इंक्लूडिंग द RCS एक्ट परमिट्स, तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से जाएंगे तो शायद अपना GST बचा पाएँ। दिस इज माय थॉट प्रोसेस, विल डिस्कस इन, लेट मी हैव ए फाइनल व्यू ऑन दैट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज my discussion with this regard. Before coming to end, let me conclude। अगर receipts सोसाइटी की 20 लाख से कम है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टैक्सेबल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं तो रजिस्ट्रेशन से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20 लाख से ज़्यादा, जब 20 लाख की बात करते हैं हम टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल करते हैं, 20 लाख से ज़्यादा है और सारी की सारी एग्जम्प्ट है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर 20 लाख से ज़्यादा है, एग्जम्प्ट भी हैं, टैक्सेबल भी हैं, तो उस केस में टैक्सेबल सर्विसेज पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल माय टेक with respect of taxability of maintenance charges collected by the society and other taxable services. Hope you have enjoyed with this. Thanks friends.